اسلام آباد ایک ایسا شہر، ایک ایسی خاصیت رکھنے والا شہر کہ جو نہ صرف پاکستان کا دارالحکومت ہے بلکہ اس شہر کو دنیا کے بہت سارے حسین ترین شہروں میں سے بھی ممتاز جانا جاتا ہے۔ اور اس شہر میں ایک ایسا سحر ہے، ایک ایسا جادو ہے کہ جو لوگ اسلام آباد میں شہر اقتدار میں رہنے کے عادی ہو جاتے ہیں وہ پاکستان میں کہیں اور جا کے ان کا دل نہیں لگتا۔ اس وقت ہمارے ساتھ موجود ہیں جو شخصیت، جو مہمان، وہ اسلام آباد کی جو مینجمنٹ کی سنبھالنے والی ادارہ ہے، آرگنائزیشن ہے CDA، اس میں کام کر چکے ہیں بہت عرصہ، لالا عزت خان۔ لالا، ہم بات کرتے ہیں اسلام آباد شہر کی خصوصیات کی، جی تو جب ہم اسلام آباد شہر کی مختلف خصوصیات کی بات کرتے ہیں تو اس کی ایک خصوصیت اس کا ڈسپلن ہے، اس شہر کا ڈسپلن، کہ اس کو ایک باقاعدہ نقشے کے تحت، نقشے کے اندر رہتے ہوئے بنایا گیا ہے، جو اصول و ضوابط رکھے ہیں۔ جی تو CDA میں آپ کب سے ہیں؟ آپ ہمیں یہ بتائیے۔ بہت شکریہ رفسندہ میڈم، آپ کے اور آپ کا چینل کا، تو میں آپ کو شکریہ ادا کرتا ہوں۔ میں میڈم آیا ہوں 1976 میں، اچھا، 1976 میں آپ نے CDA جوائن کیا؟ CDA جوائن کیا، ٹھیک ہے۔ اور میں نے اسٹل اسی طرح 42 سال نوکری کیا، اچھا اور میں پھر 2018 میں ریٹائر ہو گیا۔ اچھا، 42 سال اس لیے کہ اس وقت جب میں آیا تھا تو اس وقت کوئی شناختی کارڈ، کوئی ڈومیسائل، کوئی یہ پوچھ گچھ تو تھا ہی نہیں، اچھا۔ اور کوئی غالباً کوئی 16 سال عمر بھی پورا نہیں تھا، تو اس وجہ سے حالانکہ 18 سال بڑا مشکل سے پورا کر کے نا، تو 18 سے وہ پھر 22 بنتے، اور میں 2 سال کے بعد، اب یہ سمجھ لیں 3 سال کے بعد، بس پھر میں نے ٹریڈ یونین کے کام شروع کیا، اور بس وہ 1979 سے اسٹیج پہ اور ٹریڈ یونین اور مزدوروں کی خدمت، اور بس میں اپنا آپ کو ایک سپاہی کے طور پر پیش کیا، آج تک لگا ہوں۔ تو اسلام آباد میں اگر ہم CDA کے حوالے سے یہ جاننا چاہیں کہ CDA نے جو بھی ڈیولپمنٹ اسلام آباد کے اوپر کی ہے، 1976 میں جب آپ نے جوائن کیا، آپ خود بھی ایک نوجوان تھے اس وقت، اس ٹائم پر اسلام آباد کی صورتحال کیسی تھی اور آج اس میں آپ کتنی تبدیلی دیکھتی ہیں؟ میڈم، حقیقت تو یہ ہے، اور میں الحمدللہ یہ مجھے ایک اعزاز ہے کہ میں زندگی میں جھوٹ نہیں بولتا ہوں۔ کیا وجہ ہے؟ ایک جھوٹ کے لیے آپ کو 100 جھوٹ بولنا پڑتا ہے۔ اس وقت اور اس وقت کے اندر، یعنی وہ جس طرح ایک عام محاورہ بنا کہ زمین اور آسمان کے فرق ہے نا، تو اس سے بھی زیادہ فرق ہے۔ میں جب نوکری جوائن کیا تو پشاور موڑ کو لوگ کہتے ڈرتے تھے، لوگ نہیں جاتے، کہتے وہاں قتل غارت ہوتے۔ اکثر لوگ CDA کے ویران جگہ تھی، ویران جگہ تھا، اور اس کو ایک جھوپڑا ہوٹل تھا، اور ٹرک والا لوگ آتے تھے، یہ پشاور موڑ نہیں تھا، یہ کراچی کمپنی نہیں تھا، اپارا ہی تھا، اپارا ہی تھا، ٹھیک ہے جی۔ اور پھر یہ گڑکاوڑ مارکیٹ تھا، اور اس کے بعد پھر سپر مارکیٹ، جنا سپر ہاؤس، یہ سب چیزیں بعد میں آئے۔ تو CDA کے اگر لوگ کہتے ہیں آج کل خدمات اتنا زیادہ، اور ادھر سے ایک روڈ پنڈی سے یہ سیت پور والا روڈ 0 پوائنٹ کے نیچے سیت پور تک جاتا تھا، اور پھر ادھر سے ایک ڈبل ڈیکر چلتا تھا، میں نے اپنے آنکھوں سے جب دیکھے، اور کوئی نام گرامی آدمی ہوتا، کوئی بڑا افسر، تو اس کے پاس کہیں ویسپا اسکوٹر ہوتا تھا، اور ہمارا پاس پورا CDA میں گنتی کے میں بتاتا ہوں کہ 2-3 گاڑی تھے۔ اس شہر میں ٹیکسیز نہیں ہوتی تھی، میں کہتا ہوں نا، اس وقت وہ مورس گاڑی اور وہ پوکسی اور کسی بڑے آدمی کے پاس، اور یہ وہ، لیکن وہ بھی کسی ایک قسمت والا کے پاس، اور لوگ بڑا فخر سے سائیکلوں پر جاتے، کلاس 1 افسر، اور پیدل جاتے تھے، اور لوگوں کو صحت اور یہ وہ، اور لوگ یہ شہر کے لوگ بھی بڑے محبت کرتے۔ ہم بھی یقین کرو، جب ہم لوگوں کے پاس جاتے تھے نا الیکشن کمپین کے لیے، تو وہاں پہ لوگ ہمیں اتنا پیار محبت سے کھانے، اور اس طرح وہ آنا و جانا، اور بڑا آج کل وہ چیز ہی نہیں رہا۔ اچھا، اسلام آباد کی آبادی میں میں کہتا ہوں نا، لوگ تو آج کل آئے اس جنریشن کو، نہ کسی نے کوئی صحیح یعنی اسکول میں ان کو صحیح سبق نہیں پڑھاتے، تاریخ نہیں پڑھاتے، کئی بچوں کو پتہ نہیں ہے کہ قائد اعظم کا کیا رول تھا، علامہ اقبال کا کیا رول تھا، لیاقت علی خان کا کیا رول تھا اس وقت جو ہندوستان اور پاکستان، یہ چیز حقیقت ہے۔ اب دیکھو نا، جس طرح ہمارے کام میں سے اس پروگرام میں دیکھو، ڈاکٹر قدیر کو سہرے سے مائنس کیا، اللہ کے سارا کچھ ہو اس کے کھاتے میں تھا، ہر بندہ اسی میں جو میں تو ہم نے محنت بھی بڑا کیا۔ اس شہر کی آبادی بھی دن پہ دن بڑھتے جا رہا ہے، لیکن بدقسمتی سے میڈم میں عرض یہ کر رہا ہوں کہ ہم کبھی اس کو برا نہیں مناتے۔ ہمارے اوپر جتنا بھی کوئی تنقید کرے، ہم کہتے ہیں بھائی ہمارا CDA ایک میزبان ادارہ ہے، ہم اس شہر کی خدمت کی یہ برتی ہے، اور ہم نے الحمدللہ میں فخر ہے کہ ہم نے جتنے ہمارے سے پہلے دوست ریٹائر ہو گیا، ہم ریٹائر ہو گیا،
इज्जत के साथ और किसी किस्म का आजकल के, लेकिन हमारे ऊपर तजुर्बे बड़ा होते हैं। अच्छा, जो हुकूमत आते नवा तजुर्बा, हाँ, वो अपना विजन जैसे लेकर आते ये हैं, नहीं, तो वो उसके ये मुताबिक समझते फिर, कि मैं कोई बहुत काबिल और बहुत अकल कुल हूँ, हालांकि ये नहीं देखते कि मिसाल के तौर पर हमारा पास अगर 20 टैंकर है हम्म, तो मामूली उसके लिए बैटरी अगर नहीं होगा तो फिर नहीं होगा, कोई फंड नहीं देगा। ठीक अब है। बैटरी की वजह से पूरा टैंकर खड़ा होगा। टैंकर खड़ा है और पानी अच्छा, नहीं जा रहा है। फिर अगर आपका एक पैप खराब है तो बजाय कि उस पर कोई ध्यान दे दे, एक पैप आपको देगा, तो वो पैप नहीं देते। हालांकि इसके लिए हर वक्त ये छोटी छोटी चीजें और उसको पूरा सीडीए को बदनाम करते हैं। ठीक है, अब इन चीजें मिसाल के तौर पार्क में हम बैठे, देखो सीडीए ने अपना मेहनत किया, लोगों को यार किस्म का चीजें बनाए। अब ये बाकी शहरियों का फर्ज बनता है, अगर आप इधर सिक्योरिटी गार्ड खड़ा बैठो उस कोने पर होगा, इधर कोई बच्चा शरारत करेगा, क्या करेगा? हम बेंचों को तोड़ रहे, हम लाइटों को तोड़ रहे, हम पुलों को तोड़ रहे। लाला, हम माजरत दरख्तों के को साथ तोड़- यहाँ पर जी। मैं आपसे ये कहना चाहूँगी कि इस चीज़ को हम तस्लीम करते हैं कि जहाँ पर काम मौजूद है वहाँ पे है, लेकिन कुछ जगह ऐसी भी हैं जैसे सीडीए ने डेवलपमेंट बहुत की शहर में, लेकिन एक चीज़ जो मेरे देखने में आई, अगर हम 80s की दिहाई को देखें और 90 की दिहाई को देखें और आज देखें, उस वक्त शहर साफ़ सुथरा ज़्यादा था, अभी कचरा हमें सड़कों पे दिखाई देता है। दूसरा, आपने पार्कों की बात की, अब ट्रेल 3, ट्रेल 5 टूरिज्म की जगह है, जी जी जी। वहाँ पे वॉशरूम नहीं है, वहाँ पे पानी का कूलर नहीं है। अगर लोग हाइकिंग के लिए या सियाहत के लिए आ रहे हैं तो ये चीज़ें तो उनको चाहिए ना। जी बिल्कुल, ये आपके बजाय सवाल है, क्योंकि दारो खिलाफा जो है ना, दारो खिलाफा, अब इसका मिसाल मैं मैडम यूं दूं, मैं और आप और सब इंसान जब हम घर से निकलते हैं ना तो पहला चेहरा हम देखते आईने में, ठीक है, ये मेरे कपड़े या मेरा चेहरा ये ठीक भी है कि ठीक नहीं है। तो ये जो दारो खिलाफा होता है ना, पूरा मुल्क एक चेहरा मुल्क होता है, आपकी अक्कासी करता है, अक्कासी करते हैं। ठीक है, तो अगर किसी का चेहरा ठीक नहीं है ना तो वो आईने को ना तोड़े, वो अपने चेहरे को ठीक कर ले, बेहतर कर ले कि मुझ में ये कमी है, इसको मैं ठीक कर लूँ। लेकिन हमारा बदकिस्मती यही है कि उस वक़्त 14,000 मुलाजिम थे, ठीक है, जिस वक़्त इस शहर की आबादी बहुत कम था। जी जी जी, और उस वक़्त मैंने देखे कि इस पार्क में, मैं आज आपको अल्फन कह सकता हूँ, आज पता नहीं वो जिंदा है नहीं, रफ़ीक खान खटक डायरेक्टर था। अच्छा, और इसी पुआरा इधर लगा था, इधर मैंने उसको ऐसे तगारी पकड़ा और वो अपने हाथ से कहते हैं मुझे, मैंने कहा सर, आप कहते नहीं, मुझे बड़ा मजा आ रहा है, वो इधर खात अपना हाथ से फेंक रहा था, वो डायरेक्टर साहब, वो शक्ल सूरत से ये लगता है कि डायरेक्टर हमें है। अब वो ऑफिसर्स भी वो चाहिए ना, हाँ, उसी जज्बे की आजकल तरह। के बदकिस्मती से जो ऑफिसर आते हैं तो उसको पहले ही करनी चाहिए, मेरा कितने गाड़ी है, उसको 6 गाड़ी चाहिए, उसका बहुत बड़ा बंगला चाहिए, उसको गेस्ट हाउस चाहिए, उसको यार दोस्त चाहिए, और वो नवा तजुर्बे लेकर आते। आपके इस चैनल से मैं फायदा उठाते हुए ये बात करूं कि अभी जो मौजूदा चेयरमैन साहब आए, हमें चेयरमैन पे कोई तरार नहीं है, वो काबिल आदमी है, CSP अफसर होगा, यकीनन कमिश्नर भी है, आए DC रहा इस्लामाबाद में, पिंडी में, लेकिन आती हुई उसके मुंह से एक लफ्ज इधर से निकला और वो किसी जगह पर गया और उसने कहा मैं इधर कंपनी बनाऊंगा और मैं वाटर सप्लाई को ख़त्म करके, मैं भाई मुझे ये बताओ चेयरमैन साहब, मैं आपसे दरख्वास्त इस वक्त कर सकता हूँ, और मैं इस वक्त आपके चैनल पर अपना इस वक्त 4 यूनियन काम करते हैं, ठीक है, जिसमें सारे फहरिस्त जो है ना वो हमारा चौधरी मोहम्मद यासीन साहब है, मेरा वो जनरल सेक्रेटरी है, मैं उसके साथ हूँ, और मेरा वो CBA भी है, उसका जिम्मेदारी भी बनते है। तो पहला दरख्वास्त मैं उससे करता हूँ कि भाई आप इस बात पर चेयरमैन साहब के साथ मीटिंग कर ले, ये आपके कानूनी राइट है, आप उसको ब्रीफ करें, समझाएं कि हम नवा तजुर्बों को मुतामिल नहीं हो सकते, हम ये CDA के महकमे को बेहतर कर सकते। 7,000 वैकेंसी खाली है, भर्ती नहीं हो रहे, ठीक है जी, अफसरों का लाइन लगा हुआ है। एक मैं तो बदबख्त उसको कहूँगा, क्योंकि जो दुआ लेके न जाए ना कुर्सी से तो बदबख्त होते। एक बलोचिस्तान से आता रुहुल अमीन मेंगल, उसने अपना पीछे 280 अफसरान लेकर आए, और इधर AD, उधर डायरेक्टर लगा दिया, उधर डायरेक्टर था, इधर मेंबर लगा दिया, इधर प्लान, कोई अफरा तफरी उसने बनाया। देखिए ये सर इंतजामी मसाइल हैं, और मैं इस वक्त कंट्रोवर्शियल चीजों हाँ, में तो नहीं आपके जाना कचरे की चाहूंगी। बात मैं, पे वही कचरा जो है ना, आप बिल्कुल सही फरमा रहे हैं, मैं अपनी बात कर रहा हूँ कि जैसे हमारा CDA वाला, इसमें से ये हमारा पास एक ठेका दिया गया, इस पे 1992 से काम शुरू था, हमने उसके लिए हड़ताल किया था, हमारा 199 बंदे डिसमिस पर हम सर्विस हुए थे, ठीक है, और ये हमारा क्रिश्चियन कम्युनिटी पर उन्होंने हाथ डाला, लेकिन उस वक़्त के जाबिर हुक्मरान, जालिम हुक्मरान अक्सर जो है ना ये बेवकूफ़ी सी
मुजोर घोड़े होते हैं ना, ये कामयाब हो गया और उन्होंने वो G7 का सफाई का ठेका दिया। अब वो ठेके के मद में अरबों रुपए, हमने इस चैनल पर भी बात किया, अरबों रुपए ज़ाया हो जाते हैं। लाहौर का कोई बंदा है, वो साबिक़ वज़ीर आज़म का मियां नवाज शरीफ साहब का कोई जान पहचान वाला है। हमारा ये बदकिस्मती, हम बेहतरी को नहीं देखते, हम हर काम में अपने मकसद को देखते। वो जनाब उधर से आया था और उसने जनाब वो काम शुरू किया। अब उनकी गाड़ी को पेट्रोल भी हम दे रहे हैं, उसके जनाब मेंटेनेंस भी हम कर रहे हैं, उसको पैसे भी हम दे रहे हैं। लेकिन हमें आउटपुट चाहिए ना। आउटपुट सुनो, प्राइवेट आदमी को आप किधर से पकड़े? मैंने 42 साल नौकरी किया, मुझे खतरा था कि मैं डिसमिस हो सकता हूँ, मैं सस्पेंड हो सकता हूँ, मैं जेल जा सकता हूँ, मेरा नौकरी जा सकता है, मेरा पेंशन खत्म हो सकता है, मेरा प्लाट खत्म हो सकता है। एक प्राइवेट आदमी का क्या है? वो कहता है तेरा साथ दिहाड़ी करता हूँ, तू 500 देगा, मैं किसी जगह जाके 700 करूँ। यही वो खराबी है। 42 साल में मुझे 12 लाख तक नहीं मिले, और मेरा इसी तरह चौधरी यासीन साहब रिटायर हो गया, उसको 12 लाख तक नहीं मिले। अमानुल्लाह खान साहब है वो, अब मैं माजरत के साथ 1 मिनट मैं वो बात पूरा करूं, तो चौधरी यासीन साहब लीडिंग सीट पर बैठे, मैं उससे ये वादा करता हूँ, और वो हमारा अमानुल्लाह खान मेरा भाई की जगह है, इज़्ज़त कमाल मेरा बेटों की जगह है, शबाब बुखारी है मेरा बच्चों की जगह है। CDA के नामूस और CDA की इज़्ज़त और एहतराम के लिए हम सबको एक होना पड़ेगा। चेयरमैन साहब को ये बताना पड़ेगा कि हमको आजमाओ, हम इस शहर की 22 लाख लोगों को इत्तेहाद में और इत्तेफाक में ही बका लेकिन है अगर वो हमें सुने और हमारा बात करे तो साबिक़ा तजुर्बों से हमारा नुकसान हो गया। तो मैं चौधरी साहब से फिर आपने इस पे इनिशिएटिव लेने। अगला आपके पार्क पे बात करता हूँ। इस पार्क में हम बैठे, इसमें हम पब्लिक लेटिन है, मस्जिद भी है, आप उधर जाए फॉरेन ऑफिस के सामने है। ये नहीं, एक पार्क ऐसे नहीं है कि हमने नहीं बनाए, हमने बनाए। अब दिन पर दिन एक नवा मुसीबत इस मुल्क में आए कि IS वाला, बॉर्डर वाला, चर्सी कम्युनिटी, वो 10 इधर 5 इधर, आप कैमरा लेकर जाए G7 में वो पुलिस स्टाफ के साथ, वहाँ पे जनाब बाथरूम पर लोगों ने कब्जा किया। अब CDA के लिए ये इतना जगह, जब स्टाफ दिन पर दिन कम होता जा रहे, कुछ लोग हमारे मर गया, कुछ लोग हमारा रिटायर हो गया, नवा भर्ती है ही नहीं है, तो वो सफाई जो है ना वो ठेकेदार मेकादार सही नहीं करते। तो अगर वो उस पर तवज्जो, लेकिन मैं कहता हूँ खूब से खूब तर तलाश में होना चाहिए, खूब से खूब तर की तलाश होनी चाहिए। नाजरीन, घर की खातिर 100 तो बिछीले, घर तो आखिर अपना है। हम सबको मिलकर, हम सबको इकट्ठे रहकर ही इस वतन में तरक्की को आगे बढ़ाना है, और हमें अपने शहर को खुद भी साफ रखना है। लाला, आपने हमें वक्त दिया, आपका बहुत शुक्रिया। आप जैसे लोगों के तजर्बात से वाकई ये सबको फ़ायदा उठाना चाहिए। जो पॉलिसी मेकर्स हैं, हमारी ये बदकिस्मती है कि शायद उतना उनका रब्त नहीं होता आम लोगों के साथ, बहुत सारी चीज़ें रह जाती हैं। तो उम्मीद करते हैं अल्लाह ताला से अच्छे की। मैडम आपका बड़ा कीमती, मैं 10 सेकंड लेता हूँ। मैं अल्फन कह रहा हूँ, हमारा मुलाजिमों का, मुझे पता है, अभी मैं कोई फाइल चला रहा था, 6 साल के बाद मैंने 66 बंदों का, पिछला CBI के दौर में वो सिर्फ जो उसने 30 साल नौकरी को जा रहे हैं और एक स्केल से आगे जा रहे हैं। या मतलब है बेलदार से प्लम्बर बनने 6 साल लग गया। अब चौधरी यासीन साहब के दौर में हम कामयाब हो गया, वो मेंटेनेंस डायरेक्टर की मैं बात कर रहा हूँ। लेकिन इधर अफसर आ जाते, इधर असिस्टेंट डायरेक्टर, 3 महीने के बाद देखो डिप्टी डायरेक्टर, और अगला दिन देख तो जनाब वो डायरेक्टर चेयरमैन भी हमने देखे, तारिक खान डायरेक्टर आया था और अगला दिन देख के चेयरमैन बन के गया। इसी तरह दौर में ये अफसरों के लिए कोई और निज़ाम है और हमारा आम लोगों के लिए और निज़ाम है। तो इसमें हम मज़ीद बेहतरी कर सकते अगर छोटे स्टाफ पर ये बच्चों की तरह होते, हर माँ बाप बच्चों पर नज़र रखते, बच्चों को सहूलत देते। हम इन बड़े अफसरों का हम बच्चे हैं, लेकिन वो हमारा बच्चों पर तवज्जो नहीं देते। काबिल कदर हैं, और इसके साथ ही हम प्रोग्राम से इजाज़त चाहते हैं। आज के लिए इतना ही, हाजिर होंगे आपके साथ अगले प्रोग्राम में। अल्लाह हाफ़िज़। व्यूअर्स, हमारे चैनल NRO TV को सब्सक्राइब करना ना भूलें। हमारी वीडियोस को लाइक करें और शेयर करें। अपनी कीमती राय कमेंट्स में ज़रूर दीजिए।